So hello guys, this is another set when two directions are involved in same example. If you can see the example, 8 persons and 4 of them are facing north and remaining facing south. Okay. So ये थोड़ा सा difficult example है. You can pause the video, try it yourself. तो try it methodically. Methodically means जब भी आप next point पढ़ोगे, try to connect with previous points as well and try to think the points from all the perspectives. Means जो जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है यहाँ पर ऑर्डर है, 8 पर्सन्स के ऑर्डर्स, देयर डायरेक्शंस एंड देयर प्रोफेशन. तो ये तीनों पैरामीटर से सोचने की कोशिश करो कि उनका ऑर्डर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, क्या प्रोफेशन नहीं हो सकता. ये सब सोचो हर एक पॉइंट के लिए. तो सॉल्व होना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एल्स यू विल स्ट्रगल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट. थोड़ा सा बड़ा सेट है, अच्छा सेट है. सो पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ. So we are starting with the solution. 8 persons, okay. So their professions, and these are the 8 professions, okay. So P faces north and sits at the right end. 8 person, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So P at the right end and he is facing north. Okay. So musician faces the same direction as P. That means musician should face north direction and sits second to the left of P. So this is first left, second left. So musician will be here. So थोड़ा यहाँ पर हम लोग डायरेक्शंस मेंशन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग उनका प्रोफेशन मेंशन करते हैं. So musician is facing north direction. Okay. Now either lawyer or principal is adjacent to the musician but not both, and it is musician whose both neighbors face south. Okay, so whose neighbor are facing south, so musician's neighbor are facing south and musician के adjacent there will be either lawyer or principal. Okay. now तो कौन हो सकता है वो नहीं पता, ये हो सकता है या ये हो सकता है वो नहीं पता, कुछ भी नहीं दिया उसके बारे में. ओके, क्यू अ म्यूजिशियन इज नथिंग बट क्यू sits 3 places away from an architect. So 3 places away means इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता. देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 प्लेस अवे हो ही नहीं सकता एज देर आर ओनली 8 persons एंड पी इज एट द कॉर्नर. सो इस डायरेक्शन में, सो 1 place अवे, 2 place अवे एंड 3 place अवे. सो दिस पर्सन इज आर्किटेक्ट. सो आर्किटेक्ट, थर्ड पर्सन इज आर्किटेक्ट and is immediate right of K. So immediate right of K means K should be adjacent to Q. Q is immediate right of K. K should be adjacent to Q. So either यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर होगा, लेकिन अगर यहाँ पर मेंशन किया, ओके, इफ K is here, ओके, तो ये वाला K का लेफ्ट डायरेक्शन होगा एज K विल बी फेसिंग साउथ. तो ये वाला K का लेफ्ट डायरेक्शन होगा बट Q इज immediate right of K. Okay, hence K is at 7th place. Okay, as K is facing south, this will be immediate right of K. Now, K is neither principal nor lawyer. So K is neither principal nor lawyer. That means this guy, okay, this guy will be either principal or lawyer. So PL means principal. Okay, as P से प्रोफेसर भी है, hence प्रिंसिपल के लिए मैंने PL यूज किया है एंड प्रोफेसर के लिए हम सिर्फ P यूज करेंगे. So K is neither principal nor lawyer, so hence this guy is principal or lawyer. L and scientist are neighbors of architect. Okay, L and scientist are neighbors of architect. So either L यहाँ पर होगा and scientist यहाँ पर होगा, और L यहाँ पर होगा and scientist यहाँ पर होगा. तो कुछ भी, तो यहाँ पर सिर्फ मेंशन करते दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज कि L देन आर्किटेक्ट एंड देन साइंटिस्ट हियर, और यहाँ पर साइंटिस्ट एंड देन आर्किटेक्ट एंड देन L यहाँ पर. Now N, who is principal, sits second to the right of O. Okay, तो O का डायरेक्शन नहीं पता, सो हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर O का डायरेक्शन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता.
if O is facing north, okay, if O is facing north, then first right and second right, N will be here, okay, and N is a principal. और पॉसिबल क्या है, इफ O is facing south, then ये वाला डायरेक्शन O का राइट होगा, सो फर्स्ट राइट एंड सेकेंड राइट, N will be here like this and the N is principal. Now इस वाले अरेंजमेंट को हम लोग कहाँ पर फिक्स कर पाएंगे? देखो यहाँ पर आर्किटेक्ट है, ओके, सो 2 प्लेस अवे मीन्स देखो 6, 7, 8 तो आ ही नहीं सकते O एंड N में से कोई भी. सो क्या क्या प्लेसेस पॉसिबल है? O यहाँ पर तो N यहाँ पर हो सकता है, ओके, फर्स्ट से देखना चालू करते हैं. O यहाँ पर तो N यहाँ पर हो सकता है, बट N अगर यहाँ पर आ गया एंड N इज अ प्रिंसिपल बट दिस गाय इज अ आर्किटेक्ट, हेंस O यहाँ पर एंड N यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ओके. सो O यहाँ पर एंड N यहाँ पर वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि O एंड N यहाँ पर नहीं आ सकते. इन दोनों में से एक पर्सन, ओके, सेकेंड एंड फोर्थ में से एक पर्सन L होगा, तो सेकेंड एंड फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है. थर्ड एंड फिफ्थ हो सकते हैं या फर्स्ट थर्ड पॉसिबल नहीं है. हमने देखा कि ओ एल यहाँ पर नहीं पॉसिबल, तो उल्टा हो सकता है. देखो उल्टा पॉसिबल है क्या? अगर ओ यहाँ पर तो एन यहाँ पर, ये पॉसिबल है, ओके. ओ विल बी आर्किटेक्ट एंड एन विल बी हियर, एन विल बी प्रिंसिपल, ये पॉसिबल है. तो फर्स्ट थर्ड पे ओ एन पॉसिबल नहीं, लेकिन एन ओ पॉसिबल है, ओके. फर्स्ट एंड थर्ड के लिए एन ओ पॉसिबल है. Second, fourth anyway is not possible because one person has to L among second and fourth person. Then third and fifth देखते हैं, थर्ड एंड फिफ्थ. फोर्थ सिक्स उसके बाद कुछ पॉसिबल ही नहीं. 4, 6, 5 एंड 7 दिस इज नॉट पॉसिबल. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज थर्ड एंड फिफ्थ. तो वो पॉसिबल है क्या, वो देखते हैं. अगेन एन यहाँ पर नहीं आ सकता, एन यहाँ पर नहीं आ सकता, सो ओ ही यहाँ पर आ सकता है. एज एन इज अ प्रिंसिपल एंड दिस गाय इज अ आर्किटेक्ट, तो ओ ही यहाँ पर आ सकता है. तो O एंड N यहाँ पर प्रिंसिपल, तो दिस इज पॉसिबल. तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड दिस इज N एंड O, या थर्ड एंड फिफ्थ वेर O एंड N, दिस इज पॉसिबल. सो इन एनी केस O विल बी माई थर्ड पर्सन. N कैन बी आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, N कैन बी आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, बट O विल बी माई थर्ड पर्सन इन एनी केस. सो O को यहाँ पर मेंशन करते हैं एंड जस्ट वी विल से दैट एज पर द डायरेक्शन ऑफ O, the place will be N will be either first or fifth. Place of N will be either first or fifth. चलो आगे चलते हैं. R is a scientist. Okay, साइंटिस्ट के बारे में मुझे पता है. साइंटिस्ट इज अ नेबर ऑफ आर्किटेक्ट, तो R is a scientist, तो R यहाँ पर आ सकता है. इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द आर्किटेक्ट एंड फेसेस साउथ. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर्किटेक्ट एंड फेसेस साउथ, तो देखो साइंट तो कहीं पर भी आ सकता है, ओके. As per the direction of architect, as per the direction architect is facing, okay, either R will be at this side, second guy, or R will be a fourth guy, okay. But what do we know that this guy is facing, R is facing south, so R is facing south in any case. Now M is a professor and sits adjacent to scientist. Again M is a professor and sits adjacent to scientist. देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो अगर ये वाला केस वैलिड हुआ तो फोर्थ गाय विल बी प्रोफेसर, फोर्थ गाय इज प्रोफेसर, सॉरी अगर ये वाला केस पॉसिबल हुआ, तो आर्किटेक्ट इज और थर्ड गाय विच इज O, तो O यहाँ पर मेंशन करते हैं. फोर्थ गाय इज साइंटिस्ट एंड फिफ्थ गाय विल बी प्रोफेसर, वो इज M, ओके, M. बट यहाँ पर फिफ्थ गाय उन्होंने दिया है, फिफ्थ गाय हैज़ टू बी प्रिंसिपल और लॉयर, सो ही कैन नॉट बी प्रोफेसर. हेंस ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है गाइस इसमें. तो हेंस L, then L will be fourth person, then architect is third person, second person is scientist, and first person in this case, first person will be M, who is a professor. तो यहाँ पर हम लोग हमारे अरेंजमेंट में फिल कर देते हैं इसको. O is architect, then R is a scientist, then M is a professor, and then M R O, and then L will be here. एंड अभी यहाँ पर हमने देखा था O एंड N में से पता था, तो N हमारा फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, हेंस N विल बी एट द फिफ्थ प्लेस.
N will be at the fifth place. Okay. And N is a principal. N is a principal, ये दिया है, तो ये लॉयर नहीं आ सकता. तो हमने सारे पर्सन्स तो फाइंड आउट कर लिए. MROLNQ K and P. From left to right, this is the order. Now प्रोफेसर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट ये पता है. एल का प्रोफेशन नहीं पता. एन इज अ प्रिंसिपल, क्यू इज अ म्यूजिशियन, एंड के का भी प्रोफेशन क्या हो सकता है एंड क्या नहीं हो सकता. देखो, क्यू के बोथ द नेबर्स में से एक प्रिंसिपल होगा. अगर ये दिया था एक प्रिंसिपल या लॉयर में से एक कोई होगा, तो ये प्रिंसिपल है, तो ये लॉयर नहीं हो सकता. ओके, ये दिया था क्योंकि ये पॉइंट कि म्यूजिशियन के नेबर but not both. Either lawyer or principal is adjacent to musician, but not both. So principal is adjacent, that means lawyer is not adjacent to musician. Hence K cannot be lawyer. So K lawyer नहीं हो सकता, तो सिर्फ मेंशन करते K cannot be lawyer. Okay, K cannot be lawyer. ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ. तो लॉयर आइदर L होगा या P होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं. ये एक ही सेंटेंस बचा है. ब्यूटिशियन सिट्स 3 places अवे टू द राइट ऑफ लॉयर. तो 3 places अवे मीन्स अभी ब्यूटिशियन एंड ये लॉयर नहीं हो सकता, करेक्ट. बट 3 places अवे मीन्स अगर ये ब्यूटिशियन या लॉयर में से कोई भी हो गया, सो 1 place अवे, 2 place अवे, 3 place अवे, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी प्रिंसिपल है. ओके, तो ये ब्यूटिशियन ये पेयर नहीं हो सकता. ब्यूटिशियन एंड लॉयर का फर्स्ट एंड मतलब लास्ट एंड दिस फिफ्थ पर्सन, ये पेयर नहीं हो सकता. हिंस ब्यूटिशियन एंड लॉयर में से ये कोई भी नहीं हो सकता पी. सो ब्यूटिशियन एंड लॉयर के लिए यही कॉम्बिनेशन होगा, सिर्फ एल एंड के का कॉम्बिनेशन. एंड एल नाउ के मुझे पता लॉयर नहीं, हिंस ही इज लॉयर एंड के हैज़ टू बी ब्यूटिशियन. नाउ beautician sits 3 places away to the right of lawyer. The right of lawyer means lawyer should face north. Only in that case ये right होगा. A will be at the right hand side of L. now तो डायरेक्शन किस किस के पता है मुझे. एक ही प्रोफेशन देखते हैं. प्रोफेशन एक ही बचा है पी का. पी विल बी टीचर, एक ही प्रोफेशन बचा है. ओके, सो पी इज टीचर, के इज ब्यूटिशियन, क्यू इज म्यूजिशियन, एन इज प्रिंसिपल, एल इज लॉयर, O is architect, R is scientist and M is professor. डायरेक्शन अभी किस किस का पता करना है मुझे. इसका पता है नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग. एंड अगेन इसका डायरेक्शन, ओ का डायरेक्शन कुछ दिया है क्या. एन इज अ प्रिंसिपल, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, हेंस ओ विल बी, एन शुड बी राइट हैंड साइड ऑफ ओ, हेंस ए इज अगेन फेसिंग नॉर्थ. तो नॉर्थ वाले बंदे कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4. तो जो बचे हुए बंदे हैं, 4 बंदे नॉर्थ है एंड 4 बंदे साउथ है. सो बचे हुए बंदे दे शुड फेस साउथ. तो सारी कंडीशंस मैच हो रही है. दिस इज आवर अरेंजमेंट. सो दीज 4 guys M R and then N and K, these 4 guys are facing south and remaining 4 guys are facing north. Now let's try to solve the questions. Who sits second to the left of N? So L is facing south, so ये होगा left. So first left, second left. So answer is K. So K is nothing but beautician. Okay, K is nothing but beautician. So answer is B. Who are the neighbors of lawyer? So lawyer के neighbors are O and N, and architect and this is principal. So architect and principal. So N and क्या क्या थे, N and so O and N, architect and principal. O and N, O is architect and N is principal. So O and principal, this should be our answer. या N and architect ये भी पॉसिबल है, A भी पॉसिबल है, N and architect. So answer is D, both A and C. Okay, both A and C. Which among the following is true? Teacher sits at the left end. नहीं, teacher is at the right end. P is teacher. L is beautician. तो L is beautician ये है क्या, L is beautician नहीं, K is beautician. Okay,
O is an architect, so this is true. Okay, C is true. Three of the following four are alike in certain way and hence form a group. Which is the one that does not form that group? So O and architect. So O is architect. Okay. P and beautician. So P and beautician यहाँ पर है, देखो P के यहाँ पर beautician है. Okay. N and principal. So N is principal itself. So O is architect himself. N is principal himself. R and scientist. So R is scientist himself. So only P is not beautician. So hence odd man out is P and beautician. Answer choice B. So in this way we have solved our set. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मेथोडिकल वे से जाओगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता गाइज. एटलीस्ट इन अरेंजमेंट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बट इसमें यही है गाइज कि अगर आपको सॉल्यूशन नहीं भी आ रहा है तो भी सॉल्यूशन देखने की कोशिश मत करो, या सिर्फ पार्शल सॉल्यूशन देखो एंड उसके बाद खुद सॉल्व करो तो ही आता है. सॉल्यूशन देख के सिर्फ वो पर्टिकुलर सेट आपको समझ में आएगा, बट आपको एग्जैक्ट आपका जो थिंकिंग स्किल या लॉजिकल रीजनिंग स्किल डेवलप करना है वो स्किल डेवलप नहीं होगा. सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड स्टे हेल्दी.